Hello friends, I welcome you all once again to this YouTube channel where we have started with the spoken English course और आप सब enjoy कर रहे हो videos definitely guys. So previously हमने finish किया था prepositions and I have come again with one of the parts of speech which is conjunctions. It is a vast concept and एक बार अगर आपने conjunctions का use समझ लिया so you will be able to understand English very easily even to speak it very fluently as well. तो वही तो हमारा एम है, याद रखना है. So today I have come with the topic conjunctions. इसके अलग अलग types पढ़ेंगे. At least we will need 2 videos for this one and the next one as well. So hope you all will enjoy the concept of conjunctions. Please everyone, this is very much useful for all the students and everyone who is attempting for competitive exams and also who wish to speak English fluently. So this video is very much useful for everyone. So please cooperate me and just definitely, if you definitely enjoy my video, so please don't forget to subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. And if you really enjoy the video, so please share with your friends, guys. Very simple. And please like it. You have to like it for me. Okay, everyone? Nice. So let's talk about the conjunctions. What are the conjunctions? So conjunctions are of 3 types. Conjunctions are of 3 types. It's coordinating conjunctions, subordinating conjunctions and the correlative conjunctions. I think most of the student को पता भी नहीं होगा कि ये होते हैं types. Yes, we have 3 types of conjunctions. Coordinating conjunction होता है, subordinating conjunction होता है और होता है correlative conjunctions. Most of लोगों को पता होता है कि coordinating होता है, subordinating होता है, but correlative क्या होता है आज सब कुछ पढ़ेंगे. Not आज only, but in lecture as well. Okay, next lecture. So let's talk about the coordinating conjunctions right now. Just pay attention properly. Today we are going to discuss what are the coordinating conjunctions और होते क्या है, उनको कैसे पढ़ते हैं. That's it. अब जब हम आपके सामने लेके आएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये होते हैं coordinating conjunctions. Very simple. Let's check it out. Coordinating conjunction which are and, but, or, nor, yet, so, for. आप बोलोगे कि सर ये तो हमें पता है. यस, दीज आर नोन एज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और आपने इंग्लिश में इनको बहुत बार देखा होगा. आई बिलीव दिस, याद रखना है. सो वी आर गोइंग टू लर्न टुडे दैट व्हाट इज द यूज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंजक्शंस हियर. मोस्ट ऑफ यू नो एज वेल, बट अगर नहीं पता होगा तो समझ लेते हैं. सम डेफिनेटली कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस उनका यूज आपको पता नहीं होता है. सो वी आर गोइंग टू लर्न एवरीथिंग टुडे. जस्ट पे अटेंशन. लेट्स स्टार्ट विथ and. So what is the use of and? And can be used in the following ways. So in the ways like as a conjunction joining 2 words, phrases or clauses. And can be used to join 2 words, phrases or clauses. Is that clear? Means in addition it is used for that. देखते हैं. The lakes and mountains of Scotland. The lakes and mountains of Scotland. So in this sentence you can check it out here, guys. So the word and, the conjunction and is definitely is used to join 2 words, lakes as well as the mountains. So the conjunction we have used and here to join them. Very simple. Everyone was singing and dancing. Everyone was singing and dancing. This is joining now 2 verbs, singing and dancing. And again we use the conjunction and. Okay, it joined 2 clauses, 2 sentences as well. You cook the lunch. You cook the lunch, 1 sentence. And I will look after the children. Look after मतलब to take care of someone. किसी की केयर करना इसका मीनिंग होता है. इट्स अ फ्रेज एक्चुअली. एंड आई लुक आफ्टर द चिल्ड्रन. सो यहाँ पे 2 सेंटेंस है. यू कुक द लंच, आई विल लुक आफ्टर द चाइल्ड. दिस सेंटेंसेस आर कनेक्टेड विथ द हेल्प ऑफ कंजक्शन एंड. ओके, दोनों होते हैं क्लॉजेस, याद रखना है. दोनों क्लॉजेस को यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए हमने यूज किया है and as a conjunction. Very simple. Okay, we have lot of examples. Ram and Sham are my friends. I like snacks and ice cream, definitely. So for giving a choice as well and definitely in addition to something हम बोलते हैं and. Definitely very simple. But okay, but shows in the sentence to suggest a contrast. Contrast होता क्या है? Contrast means but suggest join the particular 2 ideas or 2 sentences which are opposite. दोनों opposite होते हैं, not equal, not same. For example, look at here. The stick was thin. The stick was thin, but it was strong. The stick was thin, but it was strong. Okay, look at here.
आपको पता होगा थीन मतलब क्या होता है, पता है? थीन मतलब होता है पतला सा। ओके, मतलब वो स्टिक कैसे थी, पतली से थी, बट इट वाज स्ट्रॉन्ग। देखो मतलब यहाँ पे स्टिक क्या थी, पतली थी, फिर भी वो स्ट्रॉन्ग थी। सो दिस इज अ कॉन्ट्रास्ट दैट बोथ द सिचुएशंस आर नॉट सेम। ओके, मीन सपोज माय फ्रेंड वाज इल, वो बीमार था, माय फ्रेंड वाज इल, वो बीमार था, ओके, बट अपेयर्ड फॉर एग्जाम, बट ही अपेयर्ड फॉर एग्जाम, फिर भी एग्जाम देने के लिए आया। सो टू ऑपोजिट थिंग्स हियर, याद रखना। ओके, द बॉय स्टडीड हार्ड बट डिड नॉट गेट गुड मार्क्स। अच्छी स्टडी करके भी अच्छे मार्क्स नहीं मिले, बहुत स्टडी करके भी अच्छे नहीं मार्क्स मिले। सो दिस इज द कॉन्ट्रास्ट, दोनों थिंग्स परस्पर विरोधी होती है, हम बोल सकते हैं। ओके, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ओके, लाइक दिस। He was ill but went to work. He was ill but he went to work. So ये मतलब वो पर्टिकुलर पर्सन इल था, बीमार था, फिर भी वो काम को गया। दिस इज कॉल्ड द कॉन्ट्रास्ट, ऑपोजिशन। शी इज पुअर बट ऑनेस्ट, शी इज पुअर बट ऑनेस्ट। वो पुअर है बट ऑनेस्ट, पुअर एंड ऑनेस्ट, पुअर एंड ऑनेस्ट। ओके, डेफिनेटली इट इज कॉल्ड दैट, इट इज अ कॉन्ट्रास्ट, याद रखना प्रॉपर्ली, वेरी सिंपल। और देख लेते हैं। ओके, the conjunction or is used to make a choice. For making a choice, look at here, you can have a tea or coffee. मतलब तुम्हारी चॉइस है कि तुम्हें टी लेना है या कॉफी लेना है, ले सकते हो। यू कैन कम विथ अस और स्टे एट होम। चॉइस क्या है, तुम हमारे साथ आ सकते हो या घर पे बैठ सकते हो, इट्स योर चॉइस। आई थिंक आपके पेरेंट्स भी आपको पूछते होंगे, यू कैन कम विथ अस और स्टे एट होम एंड चॉइस इज योर्स। आप डिसाइड करते हो कि आपको क्या करना है, लाइक दिस। मोस्टली यू विल लाइक टू गो विद देम। ओके, अगर गेम खेलना होगा मोबाइल में तो आप बोलोगे कि मम्मी मैं घर पे ही रहता हूँ, आई हैव स्टडीज। और आपकी स्टडीज क्या होती है आपको पता है, डेफिनेटली वेरी सिंपल है। ओके, कम बाय बस और ट्रेन, हैव अ चॉइस, कम बाय बस और ट्रेन, मतलब एक तो बस से आओ या ट्रेन से आओ। कभी कभी हम बड़े स्टैंडर्ड्स को ज्वाइन करते हैं, यू विल हैव टू स्टडी हार्ड और यू विल फेल। तुम्हें बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, अन्यथा तुम फेल हो जाओगे, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। यहाँ पे हम और का यूज कर सकते हैं, विच इज वेरी मच इजी, वेरी सिंपल। नॉर देखते हैं क्या होता है। ओके, नॉर इज ऑलवेज यूज टू इंडिकेट अ नेगेटिव सेंटेंस। लुक एट हियर, ही कैन नॉट फिक्स माई फोन नॉर कैन आई। ही कैन नॉट फिक्स माई फोन नॉर कैन आई, मतलब वो मेरा फोन पर्टिकुलर रिपेयर नहीं कर सकता है, और मैं भी नहीं, वो भी नहीं और मैं भी नहीं, लाइक दिस। ओके, माई फैमिली डिड नॉट बिलीव इन मी, माई फैमिली डिड नॉट बिलीव मी नॉट डिड माई क्लोज फ्रेंड्स। मतलब मेरी फैमिली तो छोड़ो, बट मेरे क्लोज फ्रेंड्स भी मुझ पे बिलीव नहीं करते थे, याद रखना है। आपका नेचर ही ऐसा होगा, सो ऐसा ही होगा ये डेफिनेटली। ओके, सो नॉट दिस एंड दैट एज वेल। ही डजंट ईट केक नॉट डज ही ईट बिस्किट्स। वो केक तो नहीं खाता है, उसके अलावा मतलब वो बिस्किट भी नहीं खाता है, कुकीज भी नहीं खाता है, मतलब ए भी नहीं खाता, ओ भी नहीं खाता। नॉट दिस नॉट दैट एज वेल। ओके, मतलब ए भी नहीं, ओ भी नहीं, नॉर का यूज होता है, याद रखना, वेरी सिंपल। हम नीदर नॉर भी यूज करते हैं, नाइदर नॉर आपने देखा होगा। ओके, नाइदर राम नॉर श्याम हैज डन दिस, मतलब राम ने भी और श्याम ने भी ये किया नहीं है। ओके, नॉट, ओके, नीदर नॉर हम यूज करते हैं, बट यहाँ पे हमने जस्ट सीखना है नॉर। नीदर नॉर अलग होता है, उसे हम नाइदर भी बोलते हैं, नीदर भी बोलते हैं, बट यहाँ पे हमें जस्ट पढ़ना है व्हाट इज द यूज ऑफ नॉर, वेरी सिंपल। यहाँ पे एग्जांपल आपने देख लिया डेफिनेटली। ओके, येट, येट समझ लो डेफिनेटली, इसे एट नहीं बोलने से बोलना है येट, 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 लाइक दिस। ओके, लुक, this conjunction is used to show contrast, just like but it is also used to show the contrast in the sentence. For example, look at here, spider webs are delicate yet very strong। आपने स्पाइडर वेब देखा होगा, बहुत डेलिकेट होता है बट वेरी स्ट्रॉन्ग एज वेल। उसमें अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉस्किटोज बोल सकते हैं, फ्लाइज उसमें स्टॉक हो जाते हैं, फंस जाते हैं, बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग। इट लुक्स डेफिनेटली डेलिकेट, इट इज डेलिकेट येट वेरी स्ट्रॉन्ग। इट इज शो द कॉन्ट्रास्ट, मतलब डेलिकेट होके भी स्ट्रॉन्ग है। ओके, इट इज द कॉन्ट्रास्ट, यार याद रखना है, परस्पर विरोधी चीज है। ओके, आई डोंट लाइक स्पाइसी फूड येट आई हैड टू ईट इन द बर्थडे पार्टी। मुझे स्पाइसी फूड डेफिनेटली अच्छा नहीं लगता, फिर भी मुझे बर्थडे पार्टी में खाना पड़ा। हैड टू ईट मतलब मुझे कुछ चीज करनी पड़ी, मतलब खाना पड़ा, लाइक दिस। ओके, मतलब कॉन्ट्रास्ट नहीं है, पसंद नहीं, फिर भी खाना पड़ा, बिकॉज नो ऑप्शन वॉज देयर, बिकॉज आई वॉज वेरी मच हंग्री। सो जब हम हंग्री होते हैं, सो वी डू नॉट थिंक अबाउट द चॉइस, जो आगे है खा लो, बिकॉज समटाइम वी आर हेल्पलेस बिफोर द हंगर। हम डेफिनेटली हेल्पलेस होते हैं
बिफोर द हंगर याद रखना है. सो वी डोंट हैव एनी ऑप्शन इन सच कंडीशन, याद रखना है. वेरी सिंपल. सो आई डोंट लाइक स्पाइसी फूड येट आई हैड टू ईट इन बर्थडे पार्टी. सो येट यहाँ पे शो कर रहा है कॉन्ट्रास्ट इन अ सेंटेंस. ओके. ही स्टडीड हार्ड येट गॉट लेस मार्क्स इन एग्जाम. बहुत पढ़ाई करके भी उसे कम मार्क्स मिले. ओके, लेस मार्क्स. सो इट इज द कॉन्ट्रास्ट. पढ़ाई करके भी कम मार्क्स मिलना, इट इज कॉल्ड द कॉन्ट्रास्ट. ओके. और हमने शो किया है बाय यूजिंग येट इन अ सेंटेंस. ओके, येट. सो इट इज द कंजक्शन शोइंग द कॉन्ट्रास्ट इन द सेंटेंस. वेरी सिंपल. ओके, सो देख लेते हैं क्या होता है. तो दिस कंजक्शन यूज्ड टू शो फॉर शोइंग द कॉन्सिक्वेंस ऑफ समथिंग. कॉन्सिक्वेंस मतलब क्या होता है, किसी का परिणाम, किसी एक्शन का परिणाम क्या होता है ये दिखाता है. सो कॉन्सिक्वेंस का मीनिंग क्या होता है समझ लो गाइस. इट इज परिणाम बोल सकते हैं उसे. हाँ, परिणाम ऑफ समथिंग मतलब कॉन्सिक्वेंस ऑफ समथिंग. लुक एट हियर. ही वाज वेरी हंग्री. ही वाज वेरी हंग्री, सो ही एट ऑल द केक. अंडरस्टैंड? आई रिपीट वन सेकेंड. ही वाज वेरी हंग्री, ये एक्शन है. वो बहुत हंग्री था, बहुत उसे भूख लगी थी. उसका परिणाम क्या हुआ, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ. सो ही एट ऑल द केक. सो उसने पूरा केक खा लिया. Hope you understand what is meaning of consequence. Very simple. Don't forget it. I have drunk 6 cups of coffee today. I have drunk 6 cups of coffee today. मैंने 6 कप कॉफी पी ली है. ओके, पी है. सो उसका कॉन्सिक्वेंस परिणाम क्या हुआ. सो आई हैव गॉट अ हेडेक. इसलिए मुझे सिर दर्द शुरू हो गया. इसका ये परिणाम था, याद रखना है. होप यू अंडरस्टैंडिंग यार. वेरी सिंपल. She wanted to pass the test. She wanted to pass the test. So she worked hard. She wanted to pass the test. So she worked hard. इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, उसने वर्क हार्ड किया. सीक्वेंस क्या है देखो, सिचुएशन क्या है. शी वॉन्टेड टू पास द टेस्ट. उसे टेस्ट पास करनी थी, पास होना था टेस्ट में. उसका परिणाम क्या हुआ, शी वर्क हार्ड. उसने बहुत पढ़ाई की. वेरी सिंपल. ओके, बहुत कुछ एग्जाम्पल बोल सकते हैं हम डेफिनेटली. ओके, आई मिस्ड माई बस. Okay, I missed my bus. Okay, so I could not reach on time. Definitely, इसका ये परिणाम होता है, याद रखना है. Okay, I was ill for several months. I was ill for several months. बहुत कुछ months से मैं बीमार था. Definitely, इसका परिणाम क्या हुआ. So I lost my job. इसका परिणाम ये हुआ कि मेरा जॉब चला गया, मेरी जॉब चली गई. Like this, ये हो सकता है. So very simple यार. Keep using these conjunctions in your sentences. You will definitely be comfortable with this, and be comfortable while speaking English. It will be very much of fun. Think and just look at English as a fun, not as a burden, not as a terror kind of. Okay, याद रखना. Very simple. For देख लेते. This is not like okay, this is for you. ये तुम्हारे लिए है, वो for नहीं है. For यहाँ पे हमें यूज करना है as a conjunction, not as a preposition. देख लेते क्या है. This conjunction is used to show the reason for some time. ओके, हम बिकॉज यूज करते हैं रीजन के लिए, सीन्स यूज करते हैं फॉर रीजन. ओके, करते हैं ना, ड्यू टू यूज करते हैं. बट कभी कभी फॉर भी रीजन के लिए यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल इज क्राइंग लाउडली. द गर्ल इज क्राइंग लाउडली. इसका रीजन क्या है कि वो लाउडली मतलब लाउडली क्राई कर रही है. फॉर शी लॉस्ट हर टॉय. क्योंकि उसका टॉय लॉस्ट हो चुका है, मतलब उसका खिलौना उसने लॉस कर दिया. लाइक दिस. ओके, वी कैंसल्ड द पिकनिक. वी कैंसल्ड द पिकनिक फॉर इट वॉज रेनिंग. We canceled the picnic. What was the reason behind it? For it was raining. क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी. I did not reach on time. I did not reach on time. But what was the reason I did not reach on time? For I missed my train. क्योंकि मैंने मेरी ट्रेन मिस कर दी. So बहुत टाइम हम बोल सकते हैं for. तो याद रखना कि for just not use as a preposition but as a conjunction as well. And I hope that you will never ever forget it. आप कभी ये भूलोगे नहीं, मुझे पता है definitely guys. So this is the end of all the coordinating conjunction. I hope that you will never forget them. So keep watching the video again and again, and if you really enjoy it, so don't forget to subscribe my channel if you are still new, और उसे like करो and please share among your friends guys. Okay guys, I will come very soon with a new video. उसमें हम पढ़ेंगे conjunction का another type, which is definitely a very important concept, which is subordinating conjunctions, and it's used in English. Hope you enjoy it. Bye everyone. See you again very soon guys. Bye all.